ये तो इसमें आया डार्क से कलर में। वही कहते सुन चक्को भाई। Shall we first we pray, then we'll sing. Okay? और Okay. So let us bow our head and look to God. Thank you, Lord, being with us so far. And thank you for this wonderful fellowship. And thank you, Lord, for this last, our cottage Christmas prayer meeting with Sandeep, Luthras, and their family. And Lord, we thank Thee and praise Thee for your grace and loving kindness. आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद कि आपने पूरे साल हमें संभाला। और इस साल के जब थोड़े से दिन रह गए यीशु, हम चाहते हैं कि हम आपकी इच्छा के अनुसार आने वाला साल अपने जीवन में तुझे लेकर के तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बन सके। प्यारे प्रभु यीशु, मैथ्यू 18 और उसके 20 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 18 and 20 verse, where 2 or 3 will gather in my name, I will be there. And we have faith, Lord. You are our midst. आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन को, गीत का गाया जाना और जो कुछ भी करते हैं, we give you all the glory, Lord Jesus, because we are not worthy, we are not so good, but you are worthy to be praised, Lord. We give you all the honor, Lord. Thank you, Jesus. Once again, we give you all the glory, and we ask this prayer in the name of our glorious and our Lord and Savior Jesus Christ. We will say Amen. 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 Shall we sing this? Joy to the world. तने आप भी फोन पे लिरिक्स निकाल सकते हैं, जॉय टू द वर्ल्ड लिरिक्स। ये वाले, क्योंकि बहुत सारे हैं ना वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे हैं। जी, ये जो है कौन? Joy to the world. इसको बड़ा करना पड़ेगा। पेंटाटोनिक्स कोई है। So we'll sing this joy to the world, the Lord चलो has प्ले, come. इसको प्ले भी करोगे साथ में? नहीं, अच्छा। सिर्फ लिरिक्स प्ले करूँगी आवाज के बगैर। अच्छा कर लो प्ले। चल रहा है? अच्छा। Sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven, nature sing. Joy to the world, the Savior reign. Let men their song employ, while fields and floods, rock hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world that we sing. Let us receive the King. Joy to the world that we sing. Let angels' voices ring. He rules the world with truth and grace. And makes the nations। ये करो। ये मैं चाह रही थी ट्रेडिशनल वाला। हाँ। ऐसे पता नहीं है। He Rules the world with truth and grace, and makes the nations grow, and glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Joy to the world, and we sing. Let earth receive her King. Receive him. Let nature sing, and heaven and nature sing, and heaven, nature sing. चलो जी, इधर उधर करके कर ले। धन्यवाद प्रभु यीशु का।
उसके आने के लिए कि उसने हमें एक अवसर और दिया है। तो मैं आज भाई संदीप लूथरा का, उनकी पत्नी का, बच्चों का और रूबी बुआ का, इनकी सबका आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके साथ जितने लोग बैठे हैं, इस साल की मैं सोचता हूँ मेरे लिए ये आखिरी कॉटेज प्रेयर मीटिंग होगी, और वो भी क्रिसमस प्रभु यीशु के साथ। आज जो मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ, उसका टॉपिक है 2 important question. There are 2 important questions in the gospel. One is Matthew 2, chapter 2 and verse 2. And second in John, the Gospel of John, chapter 1 and 38 verse. So this question I would like to read from the Bible. यहाँ पे लिखा है कि आप सब जानते हैं, मैथ्यू 2nd चैप्टर में सब कुछ लिखा है किस प्रकार से वाइज पर्सन यीशु को ढूंढने के लिए निकले। दे वर सीइंग द स्टार एंड इतना ज्ञान होने के बाद भी फिर दे वर कंफ्यूज, और फिर भी उन्होंने राजा से पूछा, और क्या पूछा? वेयर इज द किंग, वेयर इज द किंग। और दूसरा जब पढ़ते हैं जॉन 1:38, तो सेकेंड डे व्हेन जीसस वाज गोइंग, तो जॉन द बैप्टिस्ट he noted to Jesus and tell their disciple, behold, this is the Lamb of God is going. और जब उसने कहा देखो वो जगत का मेमना जा रहा है, तो लिखा है कि उसके 2 चेलों में से यीशु के पीछे हो लिए, एंड दे आर फॉलोइंग जीसस। एंड यीशु मसीह उनको घूम के पूछते हैं कि भाई तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो वो एक क्वेश्चन करते हैं, लॉर्ड वेयर डू यू लिव, तू कहाँ रहता है? एंड द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द किंग, एंड सेकंड क्वेश्चन इज वो किंग, वो राजा, वो प्रभु कहाँ रहता है? तो प्रिय भाइयों बहनों, इस बड़े दिन पर जिसे हम क्रिसमस भी कहते हैं, गुजराती और मराठी में नाताल बोलते हैं, उसे अलग अलग भाषाओं में लोग मनाते हैं। हमें अपने जीवन पर विचार करना है और अपने आप से पूछना है कि मेरे जीवन में यीशु कहाँ है, वो राजा कहाँ है, वो यीशु रहता कहाँ है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको क्रॉनिकल में मिलेगा, बाइबल में मिलेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं आज तक कभी घर में नहीं रहा, मैं टेंट में आया जाया करता था। और जब यीशु मसीह दुनिया में आया, वो कहता है लोमड़ियों के पास घर हैं, फॉक्स हैज देयर होल्स एंड बर्ड्स आर देयर नेस्ट, but I don't have any place to live. Jesus is searching a place. Friends, we are living in the last days and last hour. We all are accountable. One day we have to stand before God for the final judgment. इस बड़े दिन पर हम जानते हैं कि हर साल there are 3 very important time इन क्रिश्चियन लाइफ, चर्चेज में, परिवारों में 3 एक ऐसे मौके होते हैं जब हम लोग उस दिन 3 बातों को याद करते हैं। क्रिसमस के समय पर वी टॉक अबाउट और प्रीच ऑन मेंजर, चरनी के विषय में प्रचार करते हैं। और हम लोग बहुत कुछ इस पे बोलते हैं कि यीशु चरनी में आया, उसको जगह ना मिली, स्टिल ही इज सीकिंग प्लेस। ठीक है। दूसरा है गुड फ्राइडे जब आता है तो हम क्रूस के ऊपर विचार करते हैं। वी मेडिटेट ऑन क्रॉस, जीसस क्रूसिफाई ऑन द क्रॉस। तो प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह को हम उस क्रूस पर ढूंढने की कोशिश करते हैं
तो यीशु क्रूस पर नहीं है, जीसस इज नॉट ऑन द क्रॉस। और थर्ड है ग्रेव, कब्र। अब आप लोगों से फिर एक प्रश्न है कि ना तो यीशु मसीह चरनी में, ही इज नॉट इन द मेंजर, और ना ही वो क्रूस पर है, और ना ही वो ग्रेव में है। जीसस इज नॉट इन द मेंजर, नाइदर इन ऑन द क्रॉस नॉर इन टोम। सो वेयर इज जीसस, कहाँ है? सवाल ही उठता है, यीशु है कहाँ? सवाल ही उठता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस क्रिसमस के समय, क्योंकि क्रूस भी खाली है, चरनी भी खाली है, और कब्र भी खाली है। बहुत साल पहले एक गीत रिकॉर्ड हुआ था, कोशिश करूंगा उसकी 2 लाइन गाने की, बहुत सुंदर है। एक मानव मौत लाया, दूजा जीवन देने आया। चरनी है सूनी बिन सूली, सूली है चरनी बिन सूनी। एक मानव मौत लाया, दूजा जीवन देने आया। प्रभु यीशु मसीह आज इस समय, मेरे को बड़ा दुख होता है कि आज के समय में जब किसी को सच बताते हैं ना, किसी से कहते हैं कि देखो भाई ये गलत है, खासकर विश्वासी लोग, खासकर पास्टर लोग, खासकर मसीह विश्वासी लोग, जब उनको सत्य बताते हैं ना, तो वो सत्य को ग्रहण नहीं करते, उल्टे कमेंट कसते हैं। जब भी मैं फेसबुक ज़्यादा देखता नहीं हूँ, जब भी मुझे कोई मैसेज लोड करना होता है, आज भी मैंने एक लोड किया इंग्लिश में, दिस इज जीसस बर्थडे नॉट सेंटा क्लॉज। आप देखिए कैरल सिंह निकालते हैं, आगे कौन नाचता है? सेंटा क्लॉज। और मैं आने वाले दिन फिर रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। घर के अंदर ना तो सेंटा क्लॉज की फोटो डालो, ना मूर्ति रखो, क्योंकि दिस इज द आइडियल वर्शिप। एक हिंदू भाई ने, जिसने पिछले दिनों क्रिश्चियन चर्च पर अटैक किया, और उन्होंने कहा कि आप हमें तो कहते हो कि मूर्ति पूजा करने वाले नरक में जाएंगे, आप लोग तो अपने चर्च में देखो ना, मूर्ति रखते हो। कितनी अच्छी बात बोली। आपको पता ना, बिशप निकोलस, जिसको बिशप का नाम दिया गया, वो क्रिसमस फादर का नाम, लॉन्ग बैक हिज पास्ट अवे, ही डाइड, मर गया। आज उसके कपड़े पहन के उस मुर्दे को हम आगे चलाते हैं, यीशु बेचारा पीछे पीछे चलता है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि आई एम डेडली अगेंस्ट सेंटा क्लॉज, डेडली अगेंस्ट, बिकॉज नाउअडेज सेंटा क्लॉज इज मोर पॉपुलर देन जीसस क्राइस्ट। आप जब जेनेसिस 30 चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे एक चीज मिलेगी आपको, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। इन दिनों मेरा पूरा कंसंट्रेशन प्रभु यीशु पर है मेरा। आप देखेंगे जेकब ने जब अपने ससुर लाबान से कहा कि जितनी भेड़ बकरियां जिनके निशान होंगे वो तो मेरी होंगी, और जो नहीं होंगी वो तेरी होंगी, उसने क्या किया? जहां बकरी भेड़ पानी पीने जाती थी, वो क्या करता है? कुछ लकड़ियों को लेकर उनको छुपे निशान लेके रख देता है। सुनिए, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक बता रहा हूं आपको बाइबल से। जब बकरी, गाय, भेड़ें जब पानी देती जाती थी तो वो उसको देखती थी, और देखने के बाद गाभिन हो जाते थे, और जब बच्चे देती थी तो उनके वही चिन्ह आ जाते थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने आप लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, इस जनरेशन के दिमाग में आप यीशु को तो मार रहे हैं और सेंटा क्लॉज को जिंदा कर रहे हैं। मेरी 42 साल की मिनिस्ट्री में, जब मैं पूना में मेथोडिस्ट का पास्टर था, तो लोग पता है क्या करते थे? सेंटा क्लॉज आएगा, हम कहते थे नहीं, सेंटा क्लॉज नहीं आएगा, यीशु आएगा, वो भी तुम्हारा न्याय करने के लिए। हमें ऐसा प्रचार करना है आपको, प्रिय भाई बहनों। हम लोग छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, वो सेंटा क्लॉज के दिमाग में ऐसे बिठा दिए कि आने वाले समय में हम तो दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे जवान होंगे, जो 15-20 साल के होंगे ना, क्या वो यीशु को मानेंगे? नहीं मानेंगे।
बहुत वी आर लिविंग इन द टफ क्रूशल टाइम में हम जी रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैंने 2-3 लोगों को जब ये मैसेज दिया कि नॉट सेंटा क्लॉज बट जीसस, तो उन्होंने चिढ़ करके मेरे को जवाब दिए। मेरा एक मैसेज है अ बिटर ट्रूथ, मैं भेजूंगा आप लोगों को, सुनिए मैसेज कि किस प्रकार से कड़वा सत्य है। पौलुस कहता है कि तुम तो मेरे लिए अपनी आंख तक निकालने को देने को तैयार थे, तुम मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थे। गलातियों की पत्री को कहता है वो कि जब मैंने तुमसे सच कहा कि हे निर्बुद्धि गलतियों, तुमने आत्मा से शुरू कर शरीर पे उतार दिया, अब तुम मेरे दुश्मन बन गए हो। Nowadays the true preachers are very less. चर्चेज में पादरी लोग जानते हैं फिर भी सेंटा क्लॉज को वेलकम करते हैं। बेचारा यीशु स्टैंडिंग एट द डोर इज सेइंग behold I am standing at the door constant, I am knocking, please invite me, please invite me. Jesus is searching a place. It's a more challenge for us. प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में यीशु मसीह क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मैसेज देख रहे हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह क्या है? क्या आपके घर में यीशु है? क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? क्या आपकी कलीसिया में यीशु मसीह है? सवाल ही उठता है, कहाँ है यीशु मसीह? यीशु कहता है मेरे लिए स्थान नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर है कि चलना फिरना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थियंस उसका 6 चैप्टर 16, 17, 18 वर्ष पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है, यीशु कह रहा है कि उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, मैं तुम्हारे अंदर आकर चलना फिरना चाहता हूँ। I want to live in you because you are the temple of Jesus. कौन है हमारे टेम्पल में? प्रिय भाई बहनों, यदि यीशु हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में नहीं है तो इस शरणी को, इस क्रूस को और कब्र पर प्रचार करना बेकार है। प्रिय भाई बहनों, आज भी बहुत से लोग हर साल कब्रों पे जाते हैं। किसको ढूंढने जाते हैं? We are not hopeless if our hope in Jesus Christ. And God has given me this name, Hope in Faith Ministry. और मेरी मिसेज की जो मिनिस्ट्री है टोटली फेथ पर है, बिल्कुल ही। कनाडा में कोई नहीं कह सकता कि हमने आज तक किसी से एक पैनी भी मांगी हो। जैसे है हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बिकॉज मैं आई एम नॉट बैगर, मेरा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो मेरे जीवन में रहता है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है किस प्रकार से कई एक्सीडेंट से टूटा पड़ा है, परमेश्वर ने मुझे बचाया। किस प्रकार से मेरा जो हार्ट खराब था, यीशु ने खुद दर्शन दे के मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया। अभी फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, थैंक गॉड। क्योंकि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हम और प्रभु के पास जाते हैं। मेरी खास मिनिस्ट्री जो है प्रेयर की मिनिस्ट्री है, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन। सुबह शुरू होती है, रात तक चलती रहती है। अभी मैंने घर पे बंद करके आया हूँ फ़ोन, ये भी बंद कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज भी हमारे सामने प्रश्न है, there is very great question in our life. When we read Mark 16 and 1 verse, वहाँ पे लिखा है मैरी मगदलिनी, the mother of Jacob, Salome and all these women, they are going to the tomb. कब्र पे जा रही हैं। भूल गए कि यीशु ने कहा था तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। आज लोग भूल चुके, कहते हैं। देखिए, हमारे हिंदू भाई भी बोलते हैं प्रलय आएगी, राइट? हमारे मुस्लिम भाई भी बोलते हैं कि कयामत आएगी। हमारे क्रिश्चियन भाई भी बोलते हैं यीशु मसीह आएगा, ही इज कमिंग सून। तो आएगा तो होगा क्या? नाउ वी हैव टू प्रिपेयर ourselves for the final judgment of Jesus Christ. आप सोचिए, हम बाइबल कहती है कि जब हम सेवकों का ही पहले न्याय होगा तो पीछे का क्या होगा? The judgment is very tough. We have to pass that test. When we read Matthew 7 chapter, when I read these verses, Matthew 7, 21, 22, 23, वहाँ पे क्या लिखा है?
प्रभु यीशु मसीह कहता है जो प्रॉफिट्स हैं जितने भी, आजकल तो बहुत प्रॉफिट्स हो गए हैं, जिसको देखो प्रॉफिट्स है, जिसको देखो अपोस्टल है, जिसको देखो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, लेकिन सेवक कोई नहीं बनना चाहता। ठीक है, आप पढ़िए वो वहाँ पे प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। तो कहते हैं प्रभु हमने भविष्यवाणी की है, हमने लोगों को चंगाई की है, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। ये यीशु मसीह की शब्द हैं। मैथ्यू 7 में लिखा है ना कि प्रभु प्रभु करने वाले मेरे राज के वारिस नहीं होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हमें अपने आप को तैयार करना। और ये बहनें क्या करिए, भूल गई और जा रही है कहने हु विल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द माउथ ऑफ टोम। हमारे लिए कब्र पे से पत्थर कौन उठाएगा। और सेम वे वचन आप पढ़ेंगे जॉन 11 चैप्टर में, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़ा है तो क्या कहता है। आप सोचिए, जब यीशु मसीह लाजर को जो कफन में बंधा हुआ है, इस तरह के स्टोन मट्टी हो तो खड़ा नहीं हो सकता। जो मैंने मेडिटेशन किया, जो बहुत गहराई से प्रार्थनाओं के साथ उपवास के साथ इस पर मनन किया है, तो उस पे इस बात को जाना कि यीशु पत्थर को कह सकता था पत्थर हट जा, लेकिन यीशु ने कहा फर्स्ट तुम्हें अपने आप इस पत्थर को हटाना पड़ेगा। द स्टोन ऑफ अनफेथफुलनेस, हमारे जीवन पर अविश्वास का जो पत्थर है हमें हटाना है। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप मेरे पैरों को देखना। ठीक है, पैरों को देखना क्या होता है। जब यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया, लाजर बाहर निकला, तो लाजर कैसे निकला, कैसे निकला सोचा आपने। तो वहां मैं सोचता हूं कि बाइबल में कई जगह लिखा है कि ग्रेविटी पावर परमेश्वर की आवाज से खत्म हो गई थी कुछ सेकंड के लिए। एलिशा के समय में कुल्हाड़ी गिर गई थी, उसने देखा तो कुल्हाड़ी पानी पे तैर गई। अब जब यीशु मसीह ने उसको पुकारा तो देखिए ग्रेविटी खत्म हुई, वो खड़ा हो गया, जैसे चांद पर लोग करते हैं ना। अब वो कैसे आया होगा, क्योंकि पैर तो बंधे, मेरे पैर देखिए ऐसे आया होगा, ऐसे चल के आ रहा होगा। ये मेरी स्टडी है किया जो मैंने किया है, बहुत ऐसे चल के आया होगा। और तो प्रभु ने कहा इसे जल्दी खोलो और चांद लेट हिम गो। आज प्रभु हमें आज़ाद करना चाहता है क्रिसमस पे। अगर हम अलग अलग बातों से बंधे हुए हैं, पाप की गुलामी से बंधे हुए हैं, गुप्त विचारों से बंधे हुए हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, प्रभु के सेवक जो वचन देते उसके मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वी आर काउंटेबल, हमें खड़ा होना है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि वो कितनी पत्थर को कौन हटाएगा। जब लाजर ने उसको जिंदा किया, प्रभु ने लाजर को जिंदा किया, वो आज़ाद हो गया। लेकिन जब वो लाजर आज़ाद हो गया और प्रभु का सेवक बन गया तो लोग उसको मारने के लिए तैयार हो गए। और वो प्रभु यीशु के साथ, आप पढ़िए 11-12 चैप्टर जॉन का, कि यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको उस स्वर्गीय स्थानों में चाहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। हमें यीशु मसीह के जन्मदिन के महत्व को समझ, द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाई ही केम इनटू दिस वर्ल्ड, ही सेव्ड द सिनर। यीशु मसीह केवल 3 लोगों के लिए दुनिया में आया, पता है। प्रभु यीशु ना तो किसी बिशप के लिए आया है, ना किसी पास्टर के लिए आया, ना किसी मॉडरेटर के लिए आया, ना किसी इवेंजलिस्ट के लिए आया, ना किसी क्रिश्चियन के लिए आया। मेरे को बाइबल में बता दिए कि अगर कोई बता दे कि यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए आया, मैं आज ही मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। मैं लिखा है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। अपने लोगों का, हमें यीशु का पर्सनल व्यक्ति बनना है। मैं बड़ा आनंद होता है, मैं कहता हूँ जीसस आई माई पर्सनल गॉड, जीसस माई फ्रेंड। हम गाते ना, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। क्या हमने उस फ्रेंड को चखा है? क्या सवाल ही उठता है। तो प्रिय भाई बहनों, हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में लेना है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया। दूसरा, यीशु मसीह बीमारों के लिए आया। कहता है मैं धर्मियों को नहीं, बीमारों के लिए आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत बीमार को होती है। और तीसरा, दोज आर लॉस्ट, जक्कई को ढूंढने के लिए आया।
जक्कई ने उसे नहीं ढूंढा, प्रभु ने उसे ढूंढा. एंड टुडे जीसस इज सीकिंग यू एंड मी. आई एम नॉट परफेक्ट, बट स्टिल in my day-to-day life, I am praying, Lord Jesus, I want to be past the day of judgment. हमें उस दिन को प्रभु यीशु मसीह पास करना है. यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है. इस क्रिसमस के समय पर, इस बड़े दिन पर, do not invite Santa Claus, invite Jesus. Say, Lord Jesus, I am not worthy. I am a sinner person. Lord Jesus, today I open my heart, the door of my heart, Lord Jesus. Come into my life, Lord Jesus, and forgive my sin, Lord Jesus. I am sinner. When you read 1 Timothy and 1 chapter and 15 verse, you know, Paul, who was the great evangelist, who was the great servant of God, he says, this is a faithful saying that Jesus Christ came into this world to save the sinner. I am the chief sinner. Paul says, I am the chief sinner. My friends, I am chief sinner. In my day-to-day life, I am trying to catch my Jesus Christ. मेरे सामने एक निशान है, उसे पकड़ने के लिए दौड़ा जा रहा था. आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा आपसे. हिब्रू 12 उसका 1 वर्ष में लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है. कितनी चीज़ बताएं? रोकने वाली और उलझाने वाली. ये रोकने वाली चीज़ क्या है जानते हैं? ये हमारे दिन प्रति रोज के रोटी, कपड़ा, मकान, ये पेट, ये 3 चीजों के पीछे तो क्या हो रहा है. और तीसरी चीज है हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप. ये क्या है? हमारे 5 सेंस, आँख, कान और ये शरीर ना, ये हमें पाप में डालने की कोशिश करते हैं. पौलुस कहता है इन 3 चीजों को, तुम 2 चीजों को हटाना है. प्रभु यीशु के जन्मदिन पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके परिवार के साथ, भाई, आपकी बहन के साथ, इनके साथ, सब बच्चों के साथ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनके साथ मुझे एक अवसर और मिला कि मैं आपके साथ कह सकूं कि जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम. संसार तो किस तरह से खुश है मैं बता नहीं सकता. जो मैं अध्ययन कर रहा था, पता नहीं कितनी गैलन शराब पी जाती इस क्रिसमस के समय में. क्या हो रहा है दुनिया में? आप किसी को मत देखिए. लुक टू जीसस. इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू कन्फेस एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, लॉर्ड आई एम ए सिनर, आई एम ए सिनर, लॉर्ड फॉरगिव माय सिन. हमें अपने बच्चों को तैयार करना है कि उनके दिमाग में यीशु को जिंदा करना है. अक्सर मैंने चर्चेज में कई बार कहा है, अगर यीशु मसीह जिंदा है तो क्रिश्चियनिटी क्यों मरी पड़ी है? इफ द क्राइस्ट इज रिजन गॉड, व्हाई द क्रिश्चियन इज डेड? व्हाई? अंत में एक छोटी सी कहानी बता करके मैं ये बंद करूंगा कि हम क्यों आज प्रभु से दूर जा रहे हैं. नंबर 1, किसी से पूछो बाइबल पढ़ते हो? आई डोंट हैव टाइम ब्रदर, बिजी बिजी बिजी. ये उस दुष्ट का बड़ा है. आप चर्च जाते हो, क्या कर रहे हैं ब्रदर, टाइम नहीं मिलता चर्च जाने को. और अब तो उसने इतना कर दिया है कि चर्चे सब लॉकडाउन हो गए. लेकिन थैंक गॉड घरों में जो प्रार्थना हो रही है ना, वो हमें अपने चालू रखनी है. आपको पता है लेविटिकस उसका 6:12-13 में क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा कि जो बेदी है ना, हार्ट, इस पर प्रार्थना की आग चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे. एक समय की बात है, एक परिवार ने नया जोड़ा था शादी का. उन्होंने अपने पास्टर को बुलाया शादी पे. ध्यान से सुनिएगा, क्यों लोग प्रभु यीशु को भूलते जा रहे हैं. अंत में ये छोटी सी कहानी बता रहा हूँ मैं. उन्होंने अपने घर पे पास्टर साहब को बुलाया और बुलाने के बाद खाना वाना खिलाया. पास्टर साहब ने दुआ करी और दुआ करने के बाद चलो जो भी गिफ्ट देना था चले गए और पास्टर साहब चले गए. अब उनके पास्टर साहब के जाने के बाद अब पति पत्नी को बहुत ही टेंशन हो गया. अब उनके ऊपर टेंशन हो गया, अरे क्या हो गया, पास्टर साहब ने ऐसा क्या कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था, हम तो पास्टर साहब पर बहुत विश्वास करते हैं. तो उनका जो ये क्लाइम मैं बाद में बताऊंगा, फिर परेशान क्यों थे वो. तो उन्होंने कहा चलो भाई
फिर पास्टर साहब कुछ महीने के बाद, अब वो आग थी ना कि भाई पास्टर साहब से पूछेंगे आपने गलती ऐसा क्यों किया, पहले ही बोल देते तो हम कर देते। तो उन्होंने पास्टर साहब को कई महीने के बाद बुलाया, कई महीने के बाद बुलाया, कई महीने के बाद बुलाया। और पास्टर साहब ने जो खाना वाना खा लिया, अब वो उससे एक दूसरे को देख रहे हैं, वो कहते तुम बोलो, वो कहते तुम बोलो। तो पास्टर साहब कहें भाई बोलो, तुम ही बोल दो ना कि पास्टर साहब आप बुरा मत मानना। अब देखिए खोलते हैं, बुरा मत मानना, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं क्या कि पास्टर साहब जब लास्ट समय हमने आपको खाने पे बुलाया था, हमें बहुत दुख हुआ कि हमारा जो शादी पर जो स्पून का सेट मिला था उसमें से एक चम्मच आप ले गए, अगर आप पहले बोलते थे हम आपको सारा ही दे देते। पास्टर साहब हंसे, उन्होंने कहा बेटा आपका चम्मच पता है कहाँ है? उनकी जो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे जो बाइबल पड़ी थी ना, उसको खोल के उसमें रख दिया था। समझे आप कुछ? इतने महीने से उन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी। मैं आप लोगों से पढ़ता हूँ, अब तक जो कुछ हुआ हुआ, इस क्रिसमस से ही डेली रीड द बाइबल। प्रभु ने चाहा, पेन का नंबर मेरे पास है, मैं आपको पूरी स्टडी भेजूंगा, 7 स्टेप फॉर परफेक्ट क्रिश्चियन लाइफ, 5 जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है हमारी लाइफ के लिए, क्रिश्चियन लाइफ के लिए, वो सब मैं आपको भेजूंगा। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत इश्क मिलेंगे। मैं फिर से आप सभी को, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए और कहिए लॉर्ड जीसस टुडे आई इनवाइट यू इन माई लाइफ, इन माई फैमिली, इन माई चर्च। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए कि तूने हमारी सहायता, हमारी मदद की, कि हम प्रभु यीशु मसीह आपको याद कर सके और वास्तव में सच्चाई को हम जानना चाहते हैं। पिता, अभी हमने इतना सच्चाई को जाना नहीं, लेकिन जितना भी आज हमने जाना है, ना तो यीशु मसीह चरनी में है, ना तो क्रॉस पर है, ना तो प्रभु यीशु मसीह कब्र में है, ये सब जगह खाली है। और आज हमारे हृदय भी खाली पड़े हैं। आज इस खाली हृदय को भरने के लिए यीशु, हम अपने जीवन में आपको निमंत्रण देते हैं। लॉर्ड जीसस, कम इनटू आवर लाइफ। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर दे। हमने पिछले पूरे 2021 में जितनी भी गलतियां की हैं, अपने रिलेशन में, अपने भाई बहनों के विरोध में, पास्टर्स के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किए हैं, प्रभु माफ करना, हमें माफ करना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारे पास क्षमा करने वाली आत्मा नहीं हो, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, हमारी सहायता मदद कर। इस समय हम भाई संदीप लूथरा के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आज अपने घर में तुझे निमंत्रण दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हिब्रू 13:1-2 में लिखा है कि जब हम किसी सेवक को अपने घर में बुलाते हैं या किसी अनजान व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो तेरा वचन कहता है हम अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं, तेरे किसी एंजल की सेवा करते हैं। जैसे अब्राहम ने 18 चैप्टर जेनेसिस में तेरे सेवकों की सहायता की, उनको थोड़ी सी रोटी खिलाई और उसने कहा बसंत ऋतु में मैं तुझे आशीष दूंगा आके, और इन्हें बहुत प्यारा सा बच्चा दिया। इनके घरों पर आशीष दे पिता यीशु मसीह। मैं ऐसे में अपनी रूप बहन के पापा के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से उनको बुलाया है। बशीरुद्दीन भाई के लिए पिता, अभी वो रेस्टिंग प्लेस में पिता, आपसे प्रार्थना विनती है, हम अपने लोगों को मिस करते हैं। संदीप भाई के पापा के भी लिए पिता, वो भी इस साल चलेगा। आप जानते हैं प्रभु, आपसे कुछ नहीं छुपा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आने वाले 15 जनवरी को जब भाई अपने नए परिवार में जाएंगे, नए घर में जाएंगे, इनके सारे कार्यों में इनकी सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी प्रिय बहन लेस्लिन के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं पिछले दिनों इनके घर पर प्रेयर हुई थी, इनकी गवाही सुनी थी। What a wonderful testimony she has, Lord Jesus. We are praying for her daughters, Lord Jesus. Nothing is impossible for you, Lord Prabhu. The book of Jeremiah, 32 chapter,
6:27 says, I am the God of all flesh. Is there anything hard for me? Nothing is hard for you, Lord Jesus. Provide a wonderful boy for her daughters, Lord Jesus. Bless her, Lord Jesus. Whatever the whatever the weakness in her in physical body due to her age, Lord Jesus, you bless her. I remember, Lord, Sister Ruby and her husband and children, Lord Jesus. You have brought them safely from Calgary to Edmonton, Lord. What a wonderful God. Your mighty protection hand, Lord Jesus. वो सामर्थ्य हाथ से तूने संभाला है, जिसका यशाया 41:13 में लिखा है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। प्रभु, जब ये गाड़ी चला के आ रहे थे, ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, जैसे साम 139:5 में लिखा है कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारी कार को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे लोगों को अब आगे पीछे से मैंने घेर के रखा था। धन्यवाद फिर से प्रभु इन दोनों बच्चियों के लिए, भाई संदीप की दोनों बेटियों के लिए, जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेषकर हम जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले सालों में जब तक दोबारा हम नहीं मिलते, चाहे हम दूर रहें चाहे पास रहें, यीशु हम तुझको अच्छे लगने चाहिए। वी वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेबल इन योर साइट। किसी इंसान को हम नहीं चाहते कि खुश करें, हम चाहते हैं जितना हो सके इन अंतिम दिनों में हम तुझे खुश करना चाहते हैं। यीशु हमारी सहायता कर। वी आर सो वीक लॉर्ड जीसस, हम बहुत कमज़ोर हैं प्रभु यीशु मसीह। इस पापी संसार में रहते हैं, हम पर बहुत प्रेशर है कई चीज़ों का। प्यारे प्रभु यीशु, सहायता मदद करना। फिर से अमेरिका में जो संदीप भाई के भाई हैं, उनके परिवारों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कलीसिया के एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इक्यूमेनिकल क्रिश्चियन चर्च को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू एंटर 2022। दिस इज योर ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस लॉर्ड जीसस। हमने तो कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था प्रभु यीशु कि मैं अपने लाइफ के 68 ईयर देख लूंगा, लेकिन धन्यवाद, यू आर सो फेथफुल लॉर्ड जीसस। तो आई एम नॉट फेथफुल। कई बार मैं गिरा, कई बार कमजोरी आई, कई बीमारियों ने, एक्सीडेंट ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस डे, फॉर दिस वंडरफुल फेलोशिप लॉर्ड। मैं अपने आप को, अपने प्रियजनों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी दामाद को, और जितने हमारे मोबाइल में, सेल फोन में हमारे फ्रेंड्स के प्रे रिक्वेस्ट है, जो लोग बीमारों के नाम है प्रभु, उन सब को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज मेरे इंडिया में प्रभु दिन है प्रभु, हमारे लोगों को संभालना। हम सभी के रिश्तेदार इंडिया में, पाकिस्तान में हमारे कितने फ्रेंड्स हैं प्रभु यीशु, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इन सब के लिए प्रार्थना है। तू संभालना, मदद करना पिता, हमारी सहायता मदद करना। हमारे जवान बच्चों को संभालना पिता, समय बहुत खराब है प्रभु, मेरी सहायता करना कि इन जवानों को आने वाले दिनों में यूसुफ की, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के विषय में स्टडी दे सकूं कि वो किस प्रकार से प्रभु तेरे से एक होते हैं। अंत में प्रभु ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, जैसे आपके वचन में 1 कोरिन्थियंस 6:17 में लिखा है, जो यीशु मसीह की संगति में रहता है वो उनके साथ एक आत्मा हो जाता है, वो यीशु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हम तेरे साथ आत्मा में एक होना चाहते हैं। वी वांट टू बी वन स्पिरिट एंड वन सोल इन यू जीसस क्राइस्ट। हमारी सहायता करना। फिर से आज के आशीषमय दिन को, थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड डे। तेरी महिमा हो, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। जो कुछ भी तेरे नाम से मांगा तूने उसे स्वीकार किया है, सारी महिमा तुझे देते हैं। और इस प्रार्थना का हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। विल रिसीव द बेनेडिक्शन नाउ। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, love of the Father and sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and forever. We'll say Amen. 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 Amen.
मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आने वाले दिनों में आप और हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाए और प्रभु यीशु बढ़े और हम घटे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।